नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो मेरा वीडियो है ये एक बहुत ही गंभीर विषय पर है, जो है अंगदान, ऑर्गन डोनेशन। क्या है ये अंगदान? क्यों कोई अपना अंगदान करेगा? नहीं दोस्तों, कोई अपना अंगदान जीते जी नहीं करना चाहता। हाँ, पर कई बार मजबूरियों में ऐसी हालात बन जाते हैं कि हमें अपने परिवार के किसी सदस्य को या अपने किसी प्रियजन को अपना एक किडनी डोनेट करना पड़ता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। उसमें हम परिवारजन मदद करते हैं, क्योंकि for all these organ transplantation, matching is required. You have to match the tissues and blood, everything should match. So for that, the family members are the best person who can donate. पर अंगदान आपकी मृत्यु के बाद, हमारी मृत्यु के बाद, जब हमें अंगों की कोई जरूरत नहीं है, अगर उस समय हम ये अंग अपने किसी ऐसे को उपहार में दे पाए जिसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, या जो किसी एक अंग के खराब होने की वजह से जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, तो वो मेरे ख्याल से सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत उपहार होगा हमारा। और इसमें हमें कुछ ज्यादा नहीं करना, क्योंकि एक बार मृत्यु के बाद वो अंग हमारे किसी काम के नहीं। इस कहानी को हम एक इस तरह से ले सकते हैं कि एक आदमी या औरत जिसके बहुत खूबसूरत बाल हैं और उनके पास बहुत खूबसूरत एक सेट है कोम्स का, कंघियों का, and that person is using those combs very happily. But one day, when he or she is not having any hair on his or her scalp, that day, that beautiful set of combs is useless for him or her. And in that case, if that person gives that beautiful set of combs to someone who has good hair but no combs to comb them, then I think that would be the biggest gift for that person. Similarly, organ donation is also like that. International Organ Donation Day is observed every year on 13th of August. And we in India observe National Organ Donation Day on 27th of November. In India, many people are waiting for organ transplant. The list is very long and people are suffering. They are waiting very eagerly for any donor who can donate them that organ which can give them the life. तो ये जो अंगदान है ये बहुत बड़ा उपहार है उस व्यक्ति के लिए जो संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है अपनी जिंदगी से, मौत की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसको कोई डोनर या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जो अपना अंगदान कर सके। तो आइए इस वीडियो में आज समझते हैं कि ऑर्गन डोनेशन है क्या, किस तरह से हो सकता है, कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो हम डोनेट कर सकते हैं स्वेच्छा से, मृत्यु के बाद किस तरह से, और उसके लिए प्रोसीजर क्या है, किस तरह से अगर हम चाहें, अगर हम अपनी इच्छा से ये उपहार किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं तो वो हम कैसे दे सकते हैं, उसके लिए जो लीगल प्रोसीजर है वो क्या है, गवर्नमेंटल प्रोसीजर क्या है, और कैसे हम अपने इस इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये जो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है, it is observed on 13th of August every year to raise
awareness about the importance of organ donation and to motivate people for donating their organs after death. मृत्यु के बाद अंगदान हम करें, इसके लिए मोटिवेट किया जाता है, अवेयर किया जाता है लोगों को इस अंतरराष्ट्रीय अंगदान दिवस पर। डोनेटिंग एन ऑर्गन, हम किसी को कोई छोटा सा भी गिफ्ट देते हैं तो कितनी खुशी होती है, बिकॉज देयर इज जॉय इन गिविंग। वी ऑलवेज फील हैप्पी व्हेन वी गिव समथिंग टू एनीबॉडी, बट इफ थिंक दैट if we are giving a life to someone by our organs which are not for any use for us, how beautiful and how precious and how valuable that gift would be for someone. So one donor can save up to 8 lives. What all organs we can donate? We can donate heart, we can donate heart, we can donate liver, we can donate kidneys, we can donate intestines, we can donate lungs, we can donate pancreas, we can donate cornea, eye, and then we can donate bone marrow, and then we can donate blood. So these all things we can donate, and for donation of organ, there is no age. Like the age, all people should consider themselves as possible donors, because irrespective of their age and health and race, the newborns, because all human beings, the color of blood is red, so we all are same. So what doesn't matter what religion we follow, what race we are in, at which caste we are having, and then what age or what health. But the thing is that the organ should be healthy enough to be transplanted. So it has been seen that newly born to 90 years of age of senior citizens, they are potential donors. If that organ which they are donating, or the organ which is being donated, or the organ which is being transplanted from their body to some patient, should be healthy enough for benefit of that other person who is taking that transplantation. Now, except active cancer, if any person is suffering from active cancer or some other deadly diseases, then it is not possible for that person to donate organ. Okay. Now, first successful living donor organ transplant was taken place in the year 1954 in United States. Now, if we see the condition of India, अगर हम अपने भारत का देखें, तो number of transplants बढ़ रहे हैं, but अभी भी जो नंबर ऑफ हमारे ट्रांसप्लांट्स हैं, जो उनका रेट है, डोनेशन रेट है, ऑर्गन डोनेशन रेट जो है हमारे भारत का, दैट इज वेरी पुअर, दैट इज 0.86 पर मिलियन, मतलब 1 लाख में एक आदमी भी नहीं है। और अगर यही हम आंकड़ा दूसरे देशों का देखें तो स्पेन इज 46.9 per million, then America is 31.96 per million. So naturally we can say that there this awareness is much more than India. So we also need to be more aware and more motivated, more inspired for this noble cause. Now we need, जो आज भारत की जो जरूरत है वो है 1 per million, 1 per million अगर organ donation rate हो जाता है हमारा, तो we will be able to meet the current demand of organs. अगर हम आज का जो भारत का जरूरत देखें तो हमारे यहाँ around 5 lakh people in India, they need organ donation every year.
सो एवरी ईयर, हर साल 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको किसी न किसी अंग की जरूरत है। And 17 people die each day waiting for an organ transplant in our country. हर दिन 17 लोग मर रहे हैं इस इंतजार में कि उन्हें कोई अंग दान दे ताकि वो अपनी जिंदगी ठीक से जी पाए। अब अगर हम ऑर्गन वाइज देखें, इफ यू सी ऑर्गन वाइज, only about 25,000 corneal eye transplants are done annually against a requirement of 1 lakh. 1 lakh की रिक्वायरमेंट है, पर हमारे यहाँ सिर्फ 25,000 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। रीनल ट्रांसप्लांट्स, रीनल किडनी, अराउंड 6,000 एनुअली। एंड जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो people who are suffering from this renal failure are 1.8 lakh. So that is the difference. Then about 10% to 15% of an estimated 2 lakh patients who die of liver failure or liver cancer annually in India can be saved with timely liver transplant intervention. But only 1,500 liver transplants are done as against the need of 25 to 30,000 liver transplants annually in our country. 10 to 15 heart transplants against the 50,000 persons who suffer from heart failures. So this is the condition. जरूरत बहुत ज्यादा है, पर जो वॉलंटियर्स हैं, जो लोग अपने इच्छा से अंगदान करना चाहते हैं, वो अभी भी बहुत बहुत कम है हमारे देश में। तो क्या करना चाहिए? एक विचार आया मेरे मन में कि शायद बात करने से, एक दूसरे के साथ बैठकर ये सोचने से कि क्यों ना करें हम अंगदान। हमारी मृत्यु के बाद अगर हमारे अंग किसी के काम आ सके, किसी को जीवन दान दे सके, तो उसमें क्या बुराई है? हमारे देश के जो अंधविश्वास, कुरीतियां, इन सब चीजों में जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस आर देयर, पीपल से कि नहीं डैमेज हो जाएगी बॉडी, तो फिर नई जो बॉडी बनती है वो डैमेज पैदा होती है। क्या ये ऐसा हो सकता है? अगर आप किसी को एक हल्की सी मुस्कुराहट भी दान दे देते हैं, तो उसकी लाखों दुआएं आपके साथ होती हैं, आशीर्वाद होते हैं। तो अगर आपने किसी के बेटे, किसी की बेटी, किसी के पत्नी, किसी के पति, किसी के माता, किसी के पिता को जीवन दान दे दिया, तो क्या ऐसा हो सकता है आपके साथ? We all believe in karmic accounts. We all believe कि जो हमें मिलता है वो हमारे कर्मों का फल है। तो अगर हमारे कर्म इतने अच्छे होंगे, तो क्या उसका परिणाम बुरा हो सकता है? भी नहीं, हमेशा उसका परिणाम अच्छा ही होगा। कितने लोगों के पूरे परिवार की दुआएं हमें लगेगी, पूरा परिवार हमें आशीर्वाद देगा जब वो अंग उसके किसी प्रियजन को लगकर और उसको जिंदगी मिल जाएगी। और जीवन दान कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। एक डॉक्टर भी ये नहीं कह सकता, बहुत बहुत अच्छा सर्जन भी ये कभी नहीं कह सकता कि मैं जीवन दान दे सकता हूँ। देता है वो, देती है। A very good surgeon donate life to a patient, but the surety is not there. But still they cannot say. But the one who is donating organ, the satisfaction is there that yes, my organs are going to help someone who is going to die, who is going, उसको हम जीवन दे रहे हैं। और फिर हमारे तो किसी काम का नहीं। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप जीते जी अपनी आंखें दे दीजिए या जीते जी अपना वो दे दीजिए। हाँ, भारत देश में और भी अंतरराष्ट्रीय बहुत सारे देशों में ये एक मजबूरी के रूप में भी लिया जाता है। कुछ गरीब बेचारे जो पैसों के उसमें होते हैं, वो कई बार किसी भी प्रेशर में आकर अमीरों को अपनी किडनी बेच देते हैं, और उन्हें कई बार तो उन्हें पता भी नहीं चलता।
इस तरह के फ्रॉड्स भी हुए हैं। और इन सबको देखते हुए इस अंग दान में और अंग को निकालने की प्रक्रिया में कोई ऐसी चीज, कोई सम अनएथिकल और इलीगल इशू शुड नॉट बी देयर। इन सबको देखते हुए हमारे भारत में ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है this is the organization which is called National Organ and Tissue Transplant Organization, NOTO, NOTTO. Now, this organization is the legal organization, government organization, which is working as an apex body at the national level for networking and coordination or to distribute and procure the organ. तो यही ऑर्गन लेते हैं और यही नीडी लोग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन वेटिंग लिस्ट में है, किसको ज्यादा जरूरत है, तो ये इस पूरी नेटवर्किंग करते हैं, पूरा कोऑर्डिनेशन ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी कर रही है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डोनेटिंग the volunteers organ to the most in person, the person who required that organ the most, and they know who is in the waiting list, who is in the serious condition. So all datas are there with them and they are organizing all these systems. Now, to provide a system of removal, storage, and transplantation of human organs for treatment and prevention of unethical business. जैसे मैंने बताया कि जो गरीब लोग हैं वो बेचारे कुछ पैसों के लिए अपने अंग दान करके आते हैं मजबूरी में, उस सबको रोकने के लिए there is one legal framework for organ donation और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है और इसका नाम है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट। तो ये जो एक्ट है 1994 में लागू किया गया, THOA। Now this is ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट। ये एक्ट देखता है कि जो अनएथिकल बिजनेस है वो ना हो, उसका प्रिवेंशन हो, एंड द डीलिंग इन ह्यूमन ऑर्गन जो है एज पर द स्ट्रीमलाइन लीगल फ्रेमवर्क for organ donation can happen. So this all is seen by this transplantation of human organ act. और दूसरा मैंने आपको बताया नोटो, एंड ये जो नोटो है ये पूरा नेटवर्किंग करता है, पूरा कोऑर्डिनेशन करता है, एंड दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन which where the registrations are done. Okay, now that we have understood कि अंगदान क्यों जरूरी है और क्यों कैसे हम मदद कर सकते हैं, this all we have understood. Now suppose any one of us want to donate organ, what should we do? उसके लिए बहुत सिंपल तरीका कर दिया हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, एक फॉर्म भरना है ऑनलाइन। यू हैव टू टेक अ प्लेज to donate organs after death. Okay. Now, once you have taken this pledge, आपने ऑनलाइन जब ये प्लेज ली तो आपको एक नियर बाय हॉस्पिटल्स में या नियर बाय क्लिनिक्स में जहां भी ये फैसिलिटी होगी वहां पे बुला के आपको एक डोनर कार्ड दिया जाएगा। Now, this donor card is having one unique registration number. This donor card जो मिलता है आपको ऑनलाइन प्लेज फॉर्म भरने के बाद, this donor card is having a unique registration number. वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और वो डोनर कार्ड आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब कोई ये कहेगा कि नहीं भाई हम बाद में हम ये भी सोच सकते हैं कि हम ना करेंगे, नहीं देना है हमें अंगदान। तो ये जो आप डोनर कार्ड ले रहे हैं
इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इट डज नॉट कैरी एनी लीगल वेट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इसको भर दिया तो आपको अंगदान करना ही है। दिस इज जस्ट दैट टू शो योर इंटेंट कि यस, आपने अपने जीवन के दौरान ये इच्छा थी आपकी कि आप अंगदान करना चाहते हैं। एक बात। दूसरा, हमारी मृत्यु के बाद ये जो डोनर कार्ड है, ये कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि कोई आपकी बॉडी को खींच के जबरदस्ती ले ही जाएगा और अंगदान आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर योर डेथ, नेक्स्ट टू किन, जो भी आपका नियर और डियर है, नेक्स्ट टू किन है, जो आपके वारिस हैं, उनसे भी कंसेंट ली जाएगी। अगर वो राजी होते हैं तब इस ऑर्गन डोनेशन का प्रोसेस शुरू किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, the body is taken to the nearby hospital because the time is very crucial. If you really want to donate, you have to immediately, the next to kin has to immediately inform the nearby hospital or wherever you have registered, yeah, any other, to take the body, and they can see which organs can be transplanted, what are the healthy organs which are present and that can be transplanted, and those organs are removed from the body. And this procedure, ये जो time है वो, that is very crucial, because for some organs it is only 8 hours, for some organs it is 10 hours, 12 hours. So immediately this procedure has to begin. Another thing is that in the case of brain death, ब्रेन स्टेम डेथ क्या है, जिसको कि लीगली डेथ माना गया है इंडिया में और भी बहुत सारी कंट्रीज में। नाउ दिस ब्रेन डेथ क्या है, उसको अगर हम सिंपल तरीके से समझें कि आपका ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है और आपके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है और आपके बाकी ऑर्गन्स भी सिर्फ आर्टिफिशियल सपोर्ट पर ही चल सकते हैं। जैसे आप वेंटिलेटर पे हैं, सांस ले सकते हैं, बट दैट इज ओनली फॉर until you are having that artificial life support system with you, otherwise you cannot survive. तो लीगली इसको डेथ ही माना गया है। और मोस्टली जो हमारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या आफ्टर हार्ट अटैक्स या आफ्टर स्ट्रोक, ये ब्रेन डेथ हो जाता है। और इस ब्रेन डेथ में जो ऑर्गन्स हैं वो काफी हेल्दी कंडीशन में मिल सकते हैं। तो इसको ये भी एक ऑर्गन डोनेशन के लिए एक अच्छा वो है। तो कुछ कंट्रीज में it is legal to take one undertaking from the driver that I'm volunteer to donate my organs if this happening happens. So these things are there, but बात करने में और इस तरह से कहने में सचमुच बहुत बहुत बुरा लगता है, बहुत फील होता है। बट अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें कि अगर आज हम इस चीज को प्लेज ले लेते हैं टू डोनेट, tomorrow when these organs are not of use for us anymore, then these organs can help other to live. और मैं तो ये कहूंगी कि in one place I had read that it is donating your organ is like generating your pass for heaven. It's a sure thing that you are going to visit heaven. You are going, आपको स्वर्ग ही मिलेगा जब आप इतना अच्छा काम करके इस पृथ्वी पर जाएंगे। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, विनती है कि आप जहाँ भी हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये अवेयर करें अपने परिवार के सभी जनों को। हर कोई आपके आसपास जो भी है, जिसको भी आप समझा सकते हैं, समझाइए और बताइए कि ये सबसे बड़ा दान है। अंगदान जीवन दान है, और अगर हम किसी को जीवन दे सकें तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर किसी
के बच्चे की, किसी के भाई की, बहन की जो आंखें जिनके पास नहीं है, और आपकी आंखें फिर से उस परिवार को और उस संसार को देख पाए, तो उससे बड़ी बात क्या है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, बस विनती है कि अगर आप ठीक समझें तो प्लीज खुद को रजिस्टर करवाइए नोटो के पास, और रजिस्टर करवाने के बाद आपको यू हैव टू टेक अ प्लेज, यू हैव टू फिल दैट फॉर्म एंड यू हैव टू गेट दैट डोनर कार्ड। और उसके बाद एक बार अपने परिवारजनों को इन्फॉर्म कर दीजिए, एक बार उनको बता दीजिए कि आप चाहते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद आपके अंगों का दान किया जाए, ताकि आपके परिवारजन भी इस बात को जाने और वो भी इस चीज से सहमत हो कि हाँ, ये हमारे मेरी मदर की, मेरे फादर की, मेरे ग्रैंडफादर की, मेरे ग्रैंडमदर की ये इच्छा रही थी, तो उसको पूरा करें। तो प्लीज ये काम आप जरूर कीजिए, और मैं चाहती हूँ सभी करें। मैंने अपना प्लेज भर दिया है, मेरे पास डोनर कार्ड है, और मैं ये बता भी चुकी हूँ अपने परिवारजनों को कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे जो भी अंग किसी के काम आ सके तो वो जरूर आए। धन्यवाद। और इस जो गंभीर समस्या है हमारे सामने, जो गंभीर विषय आज मैंने आपके साथ बात की है, उस पर जरूर कुछ विचार कीजिएगा, कुछ सोचिएगा। एंड इफ वी कैन मेक पीपल अवेयर एंड अलर्ट about this noble cause, I think there would not be anything more which we can. Thank you so much. Have a nice day. Have a good day and have a good life, happy life, safe life. Be healthy, be happy, and enjoy each and every moment of your life. Thank you so much.